हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। आप सबका स्वागत है इंडियन इकोनॉमी के इस सीरीज़ में, जहां पे हम सब लोग साथ में मिलके इंडियन इकोनॉमी के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ये पीवाईक्यूज यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस, मेंस के पेपर्स में पूछे गए हैं। ये पीवाईक्यूज को हम इस लिहाज से करते हैं दैट वी डिस्कस वन पीवाईक्यू ईच डे। इकोनॉमी में हमने 2025 का 2024 का पेपर डिस्कस कर लिया है, 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2023 के पेपर में there was a question which was asked for the challenges faced by Indian irrigation system in the recent times. Further, there was one more aspect of this question, that is, what are the measures which have been taken by government for efficient irrigation management in India. Before we go deeper into the question, I want you to know that we at Shriram's IES provide a 2-year foundation batch in which the focus is totally on developing your basics and developing your understanding of all the fundamental concepts and syllabus of UPSC. This batch, 2-year foundation batch, encompasses all the NCERTs and all the advanced level classes. Along with that, you will be also provided with expert level guidance, personalized mentorship, and 3-year access to the portal. Now, once you go through all the details of this foundation, you will find out that this is one of the best courses which you can have for yourself. So come and join it and enjoy your learning at Shriram's IES. Now, we will go back to our discussion, which is about the irrigation system and how to understand this question better. अब ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स है. That first part says what are the challenges faced by Indian irrigation system in the recent times, and second part says what are the measures which have been taken to address these challenges of irrigation system. If you understand it properly, the two parts of this question must be addressed in the body properly, but before that we need an introduction for this question, and lastly we also need a way forward for such questions. Why so? Because this problem is persistent in nature, and this persistence demands innovative, bureaucratic solutions which you must provide to the examiner in your answer. Now, once we start with this thought, we need to understand that introduction mein we can have a quote which says that water is the driving force of all the nature. That is, पानी ही चलाता है पूरे नेचर को. It is life. The life on this earth is maintained by two things. One is the atmosphere and another is water. पानी और हवा ही नहीं है बाकी सारी जगहों पे, अदरवाइज तो हर जगह पे लाइफ हो जाती. ठीक है. Indian irrigation system in the recent times has been facing issues like agriculture per se utilizes 80% of the available water which we have currently at the surface level. 80% जितना भी available water है वो कहाँ यूज होता है? इरिगेशन में. वो कहाँ यूज होता है? एग्रीकल्चर में. Around 700 billion cubic meters is utilized by agricultural purposes alone. This creates a scenario where we are facing a situation where we are water scarce. We have outdated infrastructure, that is all the dams, canals, जितना भी हमारा irrigation system है, this is now filled with silt, जिसकी वजह से now our rivers have also adopted to changing of course, and there is multiple flooding जो हमारे रिवर्स में हो रही है. However, at the last we also need to know that हमारा जो वाटर है it is inefficiently being used. दैट इज हम अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से क्या कर रहे हैं? हम अभी भी वही फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं. हम अभी भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. उसमें हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं. उन्हीं चैलेंजेस को हाईलाइट करना है बॉडी में. चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज दैट वी हैव अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून. इंडिया का मॉनसून अगर आप देखें तो 3 से 4 महीने के बीच में 3 to 4 months में ही 75% ऑफ द रेनफॉल
is received. Further, even after we receive this much of monsoon, still we have some regions like Vidarbha and Marathwada, which basically witnesses multiple droughts. अब अगर हमें यहाँ तक समझ में आ गया है that despite of having good monsoon or despite of having benefits of monsoon, this monsoon is unpredictable in nature. We cannot largely depend ourselves on rainfall only. Further, एक और चीज, 30% of the area, 30% of cultivable land is dependent directly or indirectly on rainfall only. Now, this is one more aspect of this question to be understood. Second, जो हमारा irrigation infrastructure है, this irrigation infrastructure has been deteriorating over ages. ये बहुत पुराना है, decades old हमारे पास डैम्स है जो बने हुए हैं. For example, मुल्ला पेरियार डैम आप लिख सकते हो आंसर में. Further, you can also witness that our dams are decades old. They are having too much of silt and now blocked with limited capacity to store water. Simple. Furthermore, we have subsidized electricity, which has led to over extraction of groundwater. ठीक है, 80% or 85% of the groundwater which is being extracted is used for agriculture only. ठीक है, only because of cheap and free electricity. For example, this thing happens in Punjab, Haryana and Rajasthan. That is an issue जो हमें समझना है. Tube wells in Punjab and Rajasthan have now went dry. क्यों? क्योंकि water table recede कर रहा है इन regions में. ठीक है, so that is how we will start writing our challenges. बट एक चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है दैट जब भी हम आंसर लिखें, जो भी हम पॉइंट लिखें, उस पॉइंट के सामने हमें एक फैक्ट, एक ऐसा फिगर देना है, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे हमारा आर्ग्यूमेंट, मैं दो कलर्स इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझो, दिस इज माई आर्ग्यूमेंट इन येलो कलर एंड दिस इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग एज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर दिस आर्ग्यूमेंट टू बी वैलिडेटेड इन दी आइज ऑफ एग्जामिनर. समझ में आ रहा है? इसके बाद हमारा हाई कॉस्ट ऑफ मॉडर्न इरिगेशन, जैसे अगर मैं बोलूं ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, दिस कॉस्ट्स अराउंड करीब करीब 20,000 to 60,000 rupees of cost is there associated with drip irrigation and sprinklers when we take it per, I can say per acre, and in some areas it is much more than that, it goes up to 1 lakh rupees. ठीक है. Further, fragmented policy implementation in the irrigation sector. If you see that in the Pradhan Mantri कृषि सिंचाई योजना, you have seen that multiple aspects और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इसके अंदर लिए गए, they have faced delayed implementation only because of center state lack of coordination. ठीक है. However, this problem is further aggravated by water pollution. Why so? Because वाटर पोल्यूशन जहां कहीं पे भी होगा, इरिगेशन की वजह से क्या हो रहा है बताओ? इरिगेशन की वजह से जो हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, ये फर्टिलाइजर्स से रन ऑफ वाटर जाता है और ये रन ऑफ वाटर क्रिएट करता है हमारे मरीन इकोसिस्टम में यूट्रॉफिकेशन, जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ हो जाती है डेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन जाता है क्या, एक ऐसा जोन जिसको हम डेड जोन भी बोलते हैं, और एक ऐसे लेक्स जो एग्रीकल्चरल पॉन्ड्स यूजुअली हुआ करते थे, इसलिए ताकि एग्रीकल्चर को बेनिफिट हो, ताकि इस वाटर को यूज किया जा सके बाद में. बट वही चीज ड्यू टू द रन ऑफ एंड ड्यू टू एक्सेस फर्टिलाइजर्स बीइंग यूज्ड, दीज आर नाउ टर्निंग इनटू डेड लेक्स.
I'll give you an example at the last that how are these ponds now being reclaimed by some of the persons and some of the NGOs, like there is an NGO named Pond Man of India who reclaims ponds only. He is from Haryana himself. You just need to search about his case study. You will find out that he is doing a wonderful job. Climate change पे भी आपको हम यहाँ पे लिख सकते हैं. What do we need to write about climate change? Because of climate change and increasing global warming, what is happening is we are seeing unpredictable monsoon and we can say erratic rainfall, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है, irregular, and we cannot actually harness the benefits of water harvesting. ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है. अगर यहां तक समझ में आ गया है, now we need to shift to the measures which are taken by Government of India to establish or to reclaim the irrigation system of India. Now इसमें हमें सबसे पहला चीज याद रखना है, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च की गई थी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हर खेत को पानी, दैट इज एवरी फार्म शुड हैव एटलीस्ट वाटर, इरिगेशन वाटर पहुंचना चाहिए, चाहे वो कैनाल से पहुंचे, ट्यूबवेल से पहुंचे, वो ग्राउंड वाटर हो, वो कहीं से भी पहुंचे. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? दिस वाज द फर्स्ट मेजर. सेकंड, वी हैव कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट. दिस अंडर दिस व्हाट वी डू इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कमांड एरियाज, लाइक फॉर एग्जांपल एक रीजन, दिस कैन बी तहसील, दिस कैन बी डिस्ट्रिक्ट, और दिस कैन बी अ रीजन बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट्स. इस पूरे रीजन का कैनाल इरिगेशन, इस पूरे रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा डेवलप करना जरूरी है. एंड इट इज यूजुअली कवर्ड अंडर मनरेगा. ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? वन मोर थिंग विच वी विल राइट अबाउट इज 2012 की जो हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है उसका रिविजन. दिस वाज रिसेंटली डन टू अडॉप्ट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? लास्ट में पार्टिसिपेटरी इरिगेशन. पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मतलब हमने कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन कराना है. दैट इज we will invite all the NGOs, we will invite all the civil society groups, to help develop better techniques. Like for example in the ancient times we had khulls, ठीक है, जो यूज करते थे किस लिए? वाटर इरिगेशन के लिए. आपको यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम्स में ही ये क्वेश्चन पूछा था, आरा घट्टा. ऐसी ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्नोलॉजीज या फिर राजस्थान के कुछ एरियाज में वी डू वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन और ज्यादा बेहतर हो सकता है. एडवांस टेक्नोलॉजी, बट दिस एडवांस टेक्नोलॉजी मस्ट बी सब्सिडाइज्ड. अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से लेके आएंगे? सो वी कैन डू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस. फॉर एग्जांपल इजराइल प्लस ऑस्ट्रेलिया and New Zealand. These are such nations which are doing better in agriculture plus horticulture plus dairy farming. अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो यहां से हम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से. दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लास्ट में वी नीड टू राइट अ वे फॉरवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन. वे फॉरवर्ड में व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद स्मार्ट इरिगेशन. लाइक we will install some sensors which will detect the humidity of soil, and they will directly be connected to computer systems which will automatically, with the help of artificial intelligence, do what? This will irrigate the land only to the extent which is needed. ठीक है,
जितना ज़रूरत उतना ही, जब तक ह्यूमिडिटी वापस सॉइल में आएगी तभी तक इरिगेट करेगा, दैट टू बेस्ड ऑन ड्रिप इरिगेशन। दिस इनिशिएटिव इज डन बाय वेरियस कॉर्पोरेट्स who are developing smart farms. These farms have IoT, that is Internet of Things. These farms have artificial intelligence and machine learning. All the three things collectively integrated to each other. This should be best way forward which we can write. Cohesive approach and sustainability, that is हमें ये देखना होगा that how to keep agriculture sustainable. हमने land का salinization कम करना है, सैलिनाइजेशन कम करना है, लैंड का डिग्रेडेशन कम करना है। लास्ट में देयर शुड बी सब्सिडीज फॉर मॉडर्न इरिगेशन, जो मैंने इससे पहले भी बोला। कॉम्प्रहेंसिव वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क कैन बी डेवलप्ड। नाउ व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क? दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प अस टू एस्टैब्लिश मेजर्स, गाइडलाइंस नेशनल लेवल पे, क्योंकि इरिगेशन इज स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो नेशनल लेवल पे हमें ये करना चाहिए दैट हमें एक गाइडलाइन, ब्रॉड गाइडलाइन दे, जिसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर यूज, हर एक चीज करे। लास्ट में देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, पॉन्ड मैन इंडिया। दिस इज एन एनजीओ बाय रामवीर तंवर। ठीक है, ये आप देख लेना, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लेना और पढ़ लेना इसके बारे में। एंड वन मोर थिंग जो यूपीएससी ने पूछा था, दैट वाज RACS। ठीक है, ये वो सिस्टम्स होते हैं, या एक और चीज आप लिख सकते हो, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इसलिए बिकॉज टू इंटीग्रेट बोथ एग्रीकल्चर एंड फिशरी। इसी में आप एक और सजेशन दे सकते हो, दैट इज हाउ चाइनीज फार्मर्स दे आर यूजिंग व्हाट, fishing. They are doing fishing in rice fields. ठीक है, ऐसे कुछ स्मार्ट एग्रीकल्चरल मेजर्स लिए जा सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? चाइना में एक्चुअल में हो क्या रहा है, वहां के फार्मर्स, जो उनका खेत होता है उसी में स्टार्टिंग में ही, जब क्योंकि हमें पता है दैट राइस के फील्ड में स्टैग्नेशन होना चाहिए, वाटर स्टैग्नेट होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए, करीब करीब 2-3 महीने तक वो पानी में ही रहना चाहिए वो राइस। हम क्या करते, वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, वो उसी राइस के उसी पानी में मछलियाँ भी डाल देते हैं। वो मछलियाँ प्रोवाइड करती है द फिश एक्सट्रैक्ट, जो कि राइस के प्लांट्स यूज़ करते हैं। दे यूज़ इट एंड दे फिक्स द नाइट्रोजन आउट ऑफ इट, जिसकी वजह से यूरिया भी कम लगती है, फर्टिलाइजर भी कम लगता है, और अलग से एक और प्रोडक्ट भी निकलता है फार्मर के लिए, दैट इज द फिशेस। ठीक है, और लास्ट में आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी लिख सकते हो, जीरो टिलेज भी लिख सकते हो एज वे फॉरवर्ड। With this, we conclude the discussion of this question. I hope you like it. Do like the session. Do provide your feedback in the comment sections. Thank you. Jai Hind.